ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে দুই সন্তান পৌঁছালেন। পৌঁছাবার পর আম্মি জানকে বলছেন, ও মা গো, আমার লেখা সুন্দর কি ইমাম হাসান হুসেনের দুজনের মধ্যে কার লেখাটা ভালো? হযরতে খাতুনে জান্নাত সাইয়্যিদা ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ও আমার সন্তান, আমি এই ফয়সালা করতে পারবো না, তোমরা চলে যাও আমার প্রিয় আব্বা তোমার নানা জান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চলে যাও। আর নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাসান এবং হুসেন পৌঁছালেন। পৌঁছার পর ইরশাদ করলেন, ও নানা, আমার লেখাটা সুন্দর কে ইমাম হাসান এবং হুসেন দুজনের মধ্যে কোনটা সুন্দর রয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ও আমার নওয়াসা, সেই লেখাটা তোমাদের আমি ফয়সালা করব না, তোমাদের লেখা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফয়সালা করবি। अल्लाह ताला आपकी तहरीर को पसंद फरमाएगा, यानी उसको फैसला फरमाएगा। मोहतरम सामने किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीনের তরফ থেকে জিবরিল আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে একটা সেব আনলেন। আনার পর নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারাতে দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কত দয়া রয়েছে, যেন ইমাম হাসান হুসেন দুজনার যেন দুজনার মন খাটো না হয়, নারাজ না হয়, উনি দুজনার মধ্যে কেউ দুঃখিত যেন না হয়। হযরতে ইমাম হাসান হুসেনের তখতি মুবারককে একটা সেব দুই জায়গায় কেটে এক জায়গায় বিচে কেটে দুই ফালি হয়, দুইটা খাত মানে তাহরিরে পড়ে গেলেন, মানে বোঝা গেল যে দুটাই খুব সুন্দর। হযরত ইমাম হাসান হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর যে ফয়সালা রয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফয়সালা করেছেন। এইজন্য হাসান হুসেনের যে কাপড়া মুবারক, জড়ি মুবারক, কাপড় মুবারক জান্নাত থেকে এসেছিলেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। মোহতারাম সামিনে কিরাম, আমি বলতে চাই আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আমি হাসানের সঙ্গে এত মোহাব্বত করি যে আমি হাসান থেকে রয়েছি, হুসেন থেকে রয়েছি, আর হাসান হুসেন আমার থেকে রয়েছে, মানে আমি হাসান থেকে আর হুসেন আমার থেকে। দুইজন জান্নাতের সরদার আর জান্নাতের দুইজন ফুল। সুবহানাল্লাহ। আমরা বুঝতে করব না ভুল, আমরা যেন বুঝতে না করি ভুল। ইমাম হাসান হুসেনের জীবনী শোনার পর আবার কি করবুলা দেখতে যেতে হবে, যেতে হবে। মোহতারাম সামিনে কিরাম, যে আমাদেরকে খারাপ জিনিস ছাড়তে হবে, ভালো জিনিস আপন করতে হবে। মোহতারাম সামিনে কিরাম, কতগুলা জিনিস রয়েছে যে আপনাদেরকে বললে আমল করতে আপনারা বাধ্য হয়ে যাবেন, কিন্তু বলতে চাই যে আপনারা নিজেকে আপনি চিনেন। আল্লাহকে যদি খোদাকে চিনতে চান তাহলে আপনি নিজেকে চিনেন। এই জন্য আরবিতে বলে, মান আরাফা নাফসুহু ফাকাদ আরাফা রাব্বুহু। তুমি যদি আল্লাহকে চিনতে চাও তো আগে তুমি নিজেকে চিনতে হবে যে আমি কোন পথে আছি। যদি আপনি খারাপ পথে আছেন তাহলে খারাপ পথটাকে আপনাকে ছাড়তে হবে, তাহলে আপনি জান্নাতি হতে পারবে। আর ভালো পথ যদি আপন করেন তাহলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন। আর যদি খারাপ রাস্তাকে আপনি ইখতিয়ার করলেন তো আপনার সব এলোমেলো করে সব শেষ হয়ে গেলে। মোহতারাম সামিনে কেরাম, বেশিক্ষণ আমি লিব না, এই জন্য যে প্রধান বক্তা এখন চলে এসেছেন আর আমি বেশি ওয়াজ করতে চাই না, যেহেতু আপনাদের সম্মুখে আবার সমস্ত জীবনীটা মুকম্মল হয়নি, কমপ্লিট হয়নি, বাকি রয়েছে অনেক। মোহতারাম সামিনে কেরাম, আমি বলতে চাই যে আমার নবী মুস্তাফা করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি আমাদেরকে মোহাব্বত রাখতে হবে, আর ওনার মোহাব্বত রেখে আমাদেরকে হজ করতে হবে, আমাদেরকে নামাজ পড়তে হবে, আমাদেরকে যাকাত দিতে হবে, আর আমাদেরকে ঈমানওয়ালা হতে হবে। তাহলেই আমরা সঠিক
কামিল মুসলমান হতে পারবো। আর আমরা যদি নিজের আমলকে খারাপ করে দিই আর নিজের আমল নিজেকে জানতে পারবো না কি আমি কোথায় আছি, তো আপনার নামাজ পড়ে সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। আপনার নামাজ পড়ে কোনো ফায়দা হয় না, যেহেতু আপনার মুহাব্বতে রাসূল মানে আপনার মোহাব্বত আপনার মনে রাসূলুল্লাহর মোহাব্বত নাই, তার কারণে আপনার সব শেষ। তার জন্য উর্দু শায়ের লিখেছেন যে सुल्ताने जीशाने मुस्तफा है, सुल्ताने मुस्तफा है, ईमान कह रहा है मेरी जाने मुस्तफा है, जीशाने मुस्तफा है, सुल्ताने मुस्तफा है, ईमान कह रहा है मेरी जाने मुस्तफा है। और कहते हैं वल्लैल वद्दुहा है, यासीन और ताहा, वल्लैल वद्दुहा है, यासीन और ताहा, सूरत बता रही है कुरान मुस्तफा है, सूरत बता रही है कुरान मुस्तफा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत एक एक पारे में देखिए, एक एक आयत में देखिए, सूरत में देखिए, तिलावत कीजिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाहिर होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ा जाहिर होती है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के उनके उंगली से चांद तो टुकड़े हो गए, चांद तो टुकड़े हो गए, और उन्हीं के खादिम से, उन्हीं के शागिर्द से, उन्हीं के खलीफा के एक ही जागने उनकी असर की नमाज कज़ा हो गई। और नमाज असर अदा करने के लिए वो डूबा हुआ सूरज को जब वापस कर सकता है तो यकीन जानो कि अल्लाह व रसूल के मोहब्बत में अगर हम जिंदगी गुजारेंगे, नमाजों की तलकीन करेंगे, रोजों को रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीजें आपका काम आ जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम सामने मैं आपको बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क अपने अंदर लाना जरूरी है। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत खुदा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जब जब इस्लाम पर हमला हुआ तो एक न एक पैगंबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा। क्या भेजा? एक पैगंबर को भेजा। किसके लिए? हिदायत के लिए भेजा, इंसान की हिदायत के लिए भेजा। अल्लाह ताला इंसान की हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा ताकि इंसान उनकी बातों पर अमल करें। आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती उनकी बात सुन के अमल किए, ईसा नबी के उम्मती उनके बात सुन के अमल किए, मूसा नबी के उम्मती उनकी बातों पर सुन के अमल किए। हजरत नूह नबी उनके उम्मती उनकी बात सुन के चले, और जो नहीं चले वो गर्क में चला गया, जो नहीं चला वो नमरूद हो गया, जो नहीं चला वो कारून हो गया, जो नहीं चला वो हामान हो गया, जो नहीं चला वो शद्दाद हो गया, और जो नहीं चला वो इब्लीस शैतान हो गया। जो नहीं चला वो इब्लीस शैतान हो गया। इब्लीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम सजदा करो आदम को, तो आदम को सजदा ताज़िमी उस वक़्त जायज़ था, तो उन्होंने सजदे की हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों तुम सजदा करो। किसको? आदम को सजदा करो। आदम के तुम्हें सजदा करते होबे। आदम अलैहिस सालाम के सजदा करार जन्नो उन्हीं इनकार कर दिलेन, मानबो ना, आमी सजदा करबो ना। और उनकी इबादत जानते हैं, उनकी इबादत 60 मिलियन ईयर्स 6000 करोड़ बरस उन्होंने रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा किया। कोई जमीन ऐसी नहीं होगी उसकी सजदे की मिसाल के बाकी रह जाए। यानी प्रत्येक জায়গায় আপনি যদি ওনার সাজদার ওই শয়তানের ইবলিসের যদি আপনি হিসাব লাগান এমন কোনো জায়গা নাই যে ওনার সাজদা হয় নাই। সেই জায়গায় ওনার সাজদা হয়েছে, কিন্তু একটা সাজদা ইনকার করলো তো সব শেষ হয়ে গেল। এমন করি রয়েছে যে আপনি নামাজ পড়বেন, রোজা রাখবেন, হজ করবেন, যাকাত দিবেন, সব আপনার ঠিক। আর নবী মুস্তাফার যদি মোহাব্বত আপনার প্রাণে নাই তো আপনার সব শেষ, আপনার কিছু কাজ নাই।
तो मोहब्बत रसूल आपके सीने में होना जरूरी है। और मोहब्बत रसूल होने के लिए आपको नमाज की तलकीन करनी होगी, नमाज पाबंदी करनी होगी। आप नमाज को छोड़ जाते हैं। हमारे मुकर्रिर मोहतरम हजरत मौलाना रज़ाउल करीम साहब जब शुरुआती में मैं पहले दिन आया, उनकी एक जुबान से वो कलाम मैं सुना, बहुत प्यारा लगा। जी आप फजर की नमाज कज़ा करके सो रहे हैं, आप फजर की नमाज कज़ा करके सो रहे हैं, और हो सकता है आपकी अगर नींद चले जाए, यानी आप नींद ही की हालत में आप गुजर गए, इंतकाल कर जाए, तो आपका क्या हशर होगा बताइए। बेनमाजी जो बेनमाजी होते हैं, हदीस पाक में आया है, फिक़ह में आया है कि बेनमाजी के हाथ से खाने का भी इनकार किया गया है कि जो नमाजी नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ती है, उनके हाथ से भी खाना ठीक नहीं है। यानी नमाज जो पढ़ती हैं औरतें, मेरी माँ और बहनें, और जो मर्द नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनको ये तलकीन की जाती है कि आप नमाज को अदा करें। आज जो हम और आप करबला की समीर सरजमीन पर आप जा रहे हैं, तलवार लेके जा रहे हैं। अगर आज हम आप मस्जिदों को आबाद करते तो आज ये तलवार की जरूरत नहीं होती, बल्कि यही काम आप तलवार का जो होता था, ये नमाज से आपका काम हो जाता। सुभान अल्लाह, ये नमाज से आपका काम हो जाता। और ये मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह जिससे नाराज रहता है उसका आबो दाना बंद नहीं करता है, उसका चलना फिरना बंद नहीं करता है, उसका खाना पीना बंद नहीं करता है, उसके औलाद को बंद नहीं करता है। अल्लाह ये नहीं फरमाता है कि फला बंदा, मेरा फला बंदा और बंदी मेरी बारगाह में इबादत नहीं करती है तो उसके आंगन में तुम रोशनी मत दो, उसके आंगन में तुम उजाला मत दो। चांद को नहीं अल्लाह फरमाता है उनकी आंगन में रोशनी मत दो, और पानी को नहीं कहता है कि ऐ पानी मेरा जब वो किया ही नहीं कुछ तो तुम क्यों जाओगे उस जगह। इसीलिए सब तो अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ही सबका अज्र देता है, अल्लाह ही सबका बदला देता है, अल्लाह ही को मालूम है। जब अल्लाह ताला के यहाँ हम काम नहीं करेंगे तो हम खाने का हकदार नहीं है, पीने का हकदार नहीं है, जीने का हकदार नहीं है। अल्लाह ताला हम सबों को जीने के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। हम सबों को चाहिए कि हम सब इबादत करें और अपने टाइम को पहचाने, वक्त को पहचाने। मोहतरम सामने किराम, तो अल्लाह ताला जिस बंदे से नाराज रहता है उसके आबो दाना अल्लाह बंद नहीं करता है, बल्कि उसकी इबादत यानी उसके सजदों की तौफीक छीन लेता है। यानी उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो नमाज में आए, वो मस्जिद में आए, वो नमाज पढ़े, इतना टाइम नहीं मिलेगा। मोहतरम सामने किराम, मैं आपको बताऊं कि वही शख्स अच्छा इंसान है जो नमाजों की पाबंदी करता हो और उस पर अमल करता हो और हराम चीज से बचता हो। इसलिए मैं आपके सामने आला हजरत का शेर पढ़ा। क्या पढ़ा? उसी वक्त मैं पढ़ा शुरुआती में कि ये आला हजरत अजीमुल बरकत की एक एक शेर इश्क रसूल जाहिर होती है कि हम सबों को अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अगर इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है तो आपको नमाजों की तलकीन होगी, आपको इबादतों की आपको यकीन होना चाहिए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपनी उनके सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं और आप बेनमाजी है तो नबी पाक की बारगाह में आप खड़े हो जाएंगे, आपका मुंह होगा, आप आपको शर्मिंदगी महसूस होगा। और हम और उन लोगों की क्या बात बताएं कि
आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बद अकीदा दूर हो। बद अकीदा से क्या मुराद, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, नसरानी और ये तबलीगी जमात वाले जो लोटे लेके मस्जिदों को खराब करने जाते हैं, और वो मस्जिदें जो इबादत के लिए है मखसूस बनाई गई है, उस वक्त उस जगह जा करके वो बुराइयां करता है, वहां उस जगह वो खाना पीना खाता है, वो उसमें वो चीजें जो जिसमें हदीस पाक में मना आया है, बातें बहुत मना गुफ्तगू आई है, गुफ्तगू होती है, वो खराब खराब चीजें बयान करते हैं, अच्छी चीजें नहीं बयान करते हैं, नबी की बुराई करते हैं और कहते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई हैं, इसीलिए कि अल्लाह ने उसको पहले पैदा किया है और बाद में हमको पैदा किया है, इसीलिए हम नबी के बराबर है, वो बड़ा है और हम छोटा है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिल अहमद रिजवी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिल अहमद रिजवी साहिब, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, अली का दामन, अली का दामन, हसैन का दामन, हसैन का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामने किराम, तो मैं आपको बताऊं जे ईमान और अकीदे की हिफाजत ज़रूरी है। अगर ईमान आपका नहीं है तो मोहतरम आपका कुछ नहीं है। अकायद के बुनियाद पर आज लोग वहाबियों से शादी ब्याह आम हो गया है, आम बात हो गई है। आज फटाक से कहते हैं कि फलाने शख्स की आप निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको नहीं रखा जाएगा। अल्लाह वो रिज़्क़ का मालिक तुम नहीं हो, बल्कि जिसके अकायद सही हो। आला हजरत फरमाते हैं और उनके बुजुर्ग फरमाते हैं, कहाँ फरमाते, क्या फरमाते हैं कि हम सबों पर ये फर्ज आइन हो गया है। किस पर? जो वहाबी है उनसे बचने के लिए। आज उनका एक ऐसा सुलूक हो गया है, आपके घर में बेटी देने के लिए तैयार होंगे, बेटा से रिश्ता कराने के लिए तैयार होंगे कि आप उनका अकीदा खराब करें, उनका अकीदा बर्बाद करें। आज तो कि आज वो लोग क्या है, आज वो यहूदियों का एजेंडा है, वो इस्राइल का एजेंडा है, वो बदअकीदा है, बदमज़हब है। मैं मोहतरम सामने किराम, मैं आपको बताऊं कि ईमान की हिफाजत के लिए आपको उन वहाबियों के चक्कर से बचना होगा, देवबंदियों के चक्कर से बचना होगा, और कादियानी सिख के चक्कर से बचना होगा, नसरानियों के चक्कर से बचना होगा, यहूदियों की प्रोडक्ट से बचना होगा। मोहतरम सामने किराम, तो इन चीज़ों से, वो ख़राब लोगों से दूर रहना होगा, तभी हमारे आपकी ईमान की हिफाजत होगी। मोहतरम सामने किराम, हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हो, इंसान खता व निस्यान से खाली नहीं होता है। मोहतरम मैं आपको बताऊं कि इंसान एक ऐसा शख्स होता है जो खता व निस्यान से खाली नहीं होता है। गलती होती है, ये आम बात है, लेकिन गलती पर अगर आप क्या करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और गलती करने के बाद फिर गलती तौबा करने के बाद फिर तौबे पर हम सबों को अटल रहना पड़ेगा, कायम रहना पड़ेगा। अगर कायम न रहे तो फिर आपका बेकार है। मैं आपको बताऊं कि तौबा करने के बाद फिर तौबा पर आपको कायम और दायम रहना होगा। सब मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हयात बाकी मुलाकात।